So today is 20th of May 2026 and we were staying at the first camping site at Sarchu. This is the Leh highway. If you go that way, it's Leh, and this is the highway that goes to Manali. So there will be a checkpost somewhere 5 kilometers ahead, and it is 8:45 or 8:46 now, and now we'll be leaving from our camping site to Sarchu checkpost. Okay, we'll get Baralacha today, which will be a very good shooting point, and then afterwards we'll be going to Manali today. We'll take a stay at Manali, and then we'll have some rest there, and then we'll move ahead. Okay, let's catch you ahead. So here at Sarchu you'll find a lot of camping sites that they have opened. Earlier there were not so many, but now this being the checkpost and people need to get the clearance from the government that can they pass Baralacha or not. So that's the reason quite a lot people have to stay here forcefully. So quite a lot camping site has been constructed here. Where on the back side, maybe Pang and somewhere there are quite less. So this is the initial part. Also some will be there exactly at the checkpost. This is just the beginning part. The checkpost is somewhat far from here, maybe 2 or 3 kilometers from here. Did the entry. Now Baralacha has been, like, the thing has been broken off. It is 32 kilometers from here. Delhi is 782 and Chandigarh is 532 kilometers from here. And I think we came from that route all the way like this, and now we'll be going to Baralacha Pass. Made the entries at the checkpost and I'm heading to Baralacha Pass. Baralacha Pass is a hurdle between this border of Ladakh and Manali. If you can cross that, then you are able to go through pass through the borders. It is not very difficult pass. Only the thing is it is covered with snow a lot. It is one of the most scenic pass one can ever see or ever visit. So we'll reach there maybe in next 40 minutes because it's 32 kilometers, so maybe 45 minutes might be required, but it will be one of the most beautiful pass to see. It is 14 kilometers more to go to the Baralacha top, the exact peak of it, but you can see 14 kilometers before itself snow is there just besides the road, and we'll get more snow after this. This is just the beginning part of it. So people have started taking videos immediately as soon as they've reached the part of Baralacha, the initial part of Baralacha. Will shoot ahead. Do you see this? Looks like a frozen river. It's a river, or it must be a a lake initially, this part, and behind it I can see on the back side I can see a stream flowing from this. Oh, so beautiful. There's 10 kilometers ahead of Baralacha top. Still we need to go to 10 more kilometers to reach Baralacha. See, this is the reason I said to you that Baralacha Pass is the most beautiful pass one can cross. It's in Himachal Pradesh. See, when the pass opens, initially they allow these 4x4 vehicles to pass by or to trucks to pass by. Reason is, when they pass, they break the ice which is there on the road. This part is clear from ice. This part has quite a lot black ice on it. So if we try to go on black ice, even the smartest and the expert rider cannot ride on this black ice because the vehicle starts skidding. Person loses traction. So it is always advised that first of all, if the pass opens, allow trucks or 4x4 vehicles to pass by so that they can make the way or break the black ice so that everybody can move on that pass. यार ये बारलाचा टॉप पहुंच गए क्या? कितनी सारी आइस है आजू बाजू. लोग तो चढ़ रखे ऊपर. अच्छा, ये टॉप नहीं है, ये किसी ने
स्नो क्लियरिंग मशीन पार्क कर रखी, मुझे लगा आ गया। मैं तो नहीं जाने वाला, मेरा टारगेट है शायद आज आगरा पहुंचूं, और अभी 10 बजने वाले हैं, तो आगरा होते होते कल सुबह हो जाएगी। हाँ हाँ, ये दिख रहा है सामने, ऊपर लिखा है। लोग यहाँ पे रुक के रील्स बनाएंगे, पर अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकलने वाला हूँ। Okay, we've successfully reached Barlacha Pass, and there is too much of black ice. I'm finding very difficult to make a grip down. So I'll start my bike now, and I'll move ahead. Chalo. Oh man. People are making reel, but we don't have time. Need to go ahead. We have captured whatever has to be captured in our GoPro, and we are moving ahead. People are so fascinated with snow, but when the snow becomes too much, it becomes very difficult to manage even ourselves. आगे अभी आप उधर से आ रहे हो केलोंग ले से आ रहे। अच्छा, ले से हाँ, ले से नहीं आ रहे हम, ये क्या हानले से आ रहे। अच्छा। हाँ, आगे तो सरचू में रुके और सरचू से फिर अभी आए। बर्फ कितने के आगे? बर्फ नहीं है, बर्फ कुछ नहीं है, यही है बस। हाँ, इससे अभी कम होते जाएगी। अच्छा, आगे कम होती है। हाँ जी, ओके सर। थैंक्स। Okay, I think there is a lake besides. I think this is Surajtal, or maybe after that there is a Surajtal. But there are two lakes. One is Surajtal, and there is another lake called as Deepaktal. So in central part, what you can see is it has started melting down. Maybe in 2 months or months of time, this entire thing will be molten off, and this ice will also go away. Now we are lucky; we could see ice. Manali is 190 kilometers from here. Okay. Very good. Left side we have Surajtal. It has just about to unfreeze itself. Hope I capture the name of it, Surajtal. And after this there will be a lake there called as Deepaktal, or we have already covered Deepaktal. Okay, it's about to get unfrozen. तो मनाली की तरफ जा रहे हैं। अभी बारलाचा टॉप तो हो गया, अभी नीचे उतर गए, करीब 2-3 किलोमीटर नीचे उतर गए, और बर्फ़ इस तरफ ज़्यादा है, वो लद्दाख की तरफ कम है। जो बारलाचा टॉप है सरचू की तरफ कम है, और ये मनाली की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, पर अभी इस साल थोड़ी कमी लगी। आखिरी पैच बचा है बर्फ़ का, क्योंकि नीचे हमको जो लूप्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे तो बर्फ़ कम लग रही है। तो अभी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, शायद 2-3 किलोमीटर में पूरी बर्फ़ ख़त्म ही हो जाए। पर इस बार कम थी यार, 2023 में जब आया था ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। पीछे मैं एक जगह पे रुका था, वहाँ पे मैंने रील बनाई है, तो वो भी मतलब स्टोरी डाली थी, और वो स्टोरी सेव कर रखी है अभी फ़िलहाल। तो वहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ी सी बर्फ़ इतनी बची है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। अभी वो धीरे धीरे अनफ्रीज हो रही है और नीचे जा रही है। ये पीछे जो शायद सूरजताल था और दीपकताल था ना, ताल था, वो शायद भागा नदी का उगम स्थान है। तो ये अभी बहते हुए आगे जाएगी और काफ़ी बड़ी नदी हो जाएगी। 10 बजे, अभी सुबह के टाइम में धूप इस तरफ पड़ रही है राइट में,
तो सुबह धूप तेज़ होती नहीं, बहुत बिल्कुल नाम के लिए होती है। दोपहर के टाइम धूप, सूरज इधर जाएगा और धूप इस तरफ गिरेगी लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला जो एरिया है ये सूखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बर्फ वर्फ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो सुबह अगर धूप जिस जगह पे पड़ती है वो पिघलता नहीं है, कहीं पे धूप पड़ती नहीं तो वो तो बहुत बुरी हालत में रहता है। वो पार्ट माउंटेन का बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और काफ़ी दिन तक वो रह जाती है। ये देखो ये पूरा ड्राई सा दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरफ दोपहर में धूप पड़ती है। You can see the difference. On the right side there is no, very less snow, whereas on the right side you'll find, whereas on the left side you'll find lot of snow is there. भाई साहब एक कपल आया, बीच में छोटे बच्चों को बिठाया, शायद ये बारलाचा करेंगे और वापस आ जाएंगे। पर जी देखो क्या लोग घूमते हैं यार, हम तो अकेले घूम रहे हैं, लोग फैमिली के साथ घूमते हैं बाइक पे। हम पहुंचे जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार बारलाचा से नीचे उतरने के बाद है। अभी यहाँ पे एक बहुत बदनाम सी वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। अभी ये शायद ये डीजल, यहाँ पे डीजल मिलता है, ये मिलिट्री वालों को ही मिलता होगा शायद। अभी आगे है ना कुछ 2-3 किलोमीटर पे वाटर क्रॉसिंग है। अगर इस बार तो है नहीं शायद, वो कह रहे हैं, पर दो साल पहले बहुत बुरे वीडियो आए थे वहाँ से, गाड़ियाँ बह रही थी, इतना खतरनाक सीन था। चलो अभी तो दिख नहीं रहा शायद कुछ, क्योंकि गाड़ियाँ कोई बोल नहीं रहा कि वाटर क्रॉसिंग है, पर देखते हैं अभी मिलती है तो। ये पानी का फ्लो दिख रहा है, ये जिंगजिंग बार की वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी, पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल इन्होंने ब्रिज बना दिया है और पानी को नीचे से डाइवर्ट कर दिया है। तो ये पूरा पानी ये रास्ते से आता था और बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे यहाँ पे, ये पूरा क्लियर हो गया। और ये कितना बढ़िया सी, शायद ये इसी साल किया लग रहा है। ये एक सीमेंट कंक्रीट तो अभी का लग रहा है, ये आज लगा है ऐसा लग रहा है। और पूरी वाटर क्रॉसिंग गायब कर दिए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए तो ये कोई सा भी रोड कैसा भी हो साफ़ कर सकते हैं। और इसका गूगल मैप पे अगर डालते हो तो इसका नाम भी ऐसा ही है, डेंजरस वाटर क्रॉसिंग ऑफ जिंगजिंग बार। तो ये पूरी क्लियर हो गई है, तो लोगों को मालूम भी नहीं होता था है अभी शायद यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। चलो अभी हम तो लकी है, अभी निकलते हैं। ये मेरे को शूट करना था पर ये देखो हट गया, ये बहुत बढ़िया काम हो गया। और ब्लॉक पड़े हैं, पहले यहाँ पे बड़े बड़े गोल गोल से पत्थर हुआ करते थे और बहुत तेज़ पानी की और बहुत बड़ी यानी पानी की वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी, वाटर क्रॉसिंग। और बंदा खुद को संभाले या गाड़ी को संभाले। और ये पूरी वाटर क्रॉसिंग, एक ब्रिज डाल दिया इन्होंने बीच में, पूरी वाटर क्रॉसिंग हट गई। ये अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पेवर ब्लॉक की, क्योंकि पानी तो नीचे से जा रहा है बह के। पहले रास्ते से आता तो रास्ता तो ख़त्म कर देता था, अभी वाटर क्रॉसिंग बची ही नहीं। ये बहुत अच्छा रास्ता हो गया अभी जिंगजिंग बार का। तो डेंजरस वाटर क्रॉसिंग जो नाम है गूगल मैप पे, वो अभी कुछ और हो जाएगा, हट जाएगा वो। कितनी सुंदर नदी है नीचे, और देखो कैसे अलग अलग से पाथ बना रखे उसने, कभी यहाँ से जाए कभी वहाँ से जाए। अभी पानी कम है इसलिए बहुत छोटी दिख रही है, पर जून जुलाई में शायद पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता होगा। और आगे दारचा ब्रिज लगेगा अभी हमें, नीचे ये दारचा ब्रिज, ये शायद एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक पे, हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे लंबा ब्रिज है। तो ये दारचा ब्रिज से, दारचा से पहले दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है पीछे जहाँ से मैं वो बारलाचा पास, और अगर सामने जाता हूँ मैं तो वो जाता है शिंकुला पास, तो वहाँ पे शूट करता हूँ। नीचे चेक पोस्ट है, किसी को ऊपर छोड़ना है या आगे जाना है तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे एंट्री करनी है। अभी मैं पीछे से जो आ रहा हूँ मैं बारलाचा से आ रहा हूँ, और अगर मैं सीधा ऊपर जाता हूँ इस तरफ तो मैं शिंकुला टॉप पहुँच जाऊँगा। ज़ांस्कार की एंट्री यहाँ से होती है, मतलब एक ये भी रास्ता है लेह जाने के लिए और लद्दाख जाने के लिए। और अभी हम तो नीचे जा रहे हैं मनाली की तरफ, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी शायद हमारी, तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे। तो जो भी आता है जिसको लद्दाख जाना है या ऊपर किस जाना है तो उसको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। दारचा चेक पोस्ट है और आगे दारचा ब्रिज लगेगा। मनाली 150 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। दिस इज़ द दारचा ब्रिज।
It is sitting at 1100 feet, and it is one of the longest bridge in Asia, which has this much which has this much length to it. So this is one of the famous bridge called as Dharcha Bridge. We will cross this because it's blocking our view. So on the left side we'll be going towards Manali. I think should be 800 meters or maybe 1 kilometers. Length of this might be 800, I believe. We'll have to Google and check how much is the actual length, or else it will be written somewhere here. बिल्कुल चेंज हो गई, सब तरफ हरियाली दिख रही है, साफ पानी दिख रहा है एक तरफ, थोड़ा बर्फ भी दिख रहा है यहाँ पे, पर पेड़ देखो कितने लगे हैं। ये हिमाचल प्रदेश है और पीछे ये शायद लाहौल स्पीति घाटी का एरिया है। अभी अटल टनल तो क्रॉस करना है मैंने, करीब 100 किलोमीटर पे होगा अटल टनल। और ये देखो पूरी सीनरी चेंज होगी। अभी आगे जिस्पा है, काफ़ी लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। तो अगर किसी को दिल्ली से मनाली जाना है, दिल्ली से लेह जाना है, तो यहाँ पे कैंप करते हैं जिस्पा में, और फिर यहाँ से आगे जाते हैं। ये थोड़ा नीचे हाइट पे थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाता है। नहीं तो बारलाचा क्रॉस करके सरचू में अगर पहुँच जाए और वहाँ पे रह जाए कोई, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड पे और बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। हम सुबह जम गए थे, कुल्फ़ी जम गई थी हमारी जिस्पा। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो मनाली से थोड़ा आगे अगर किसी को और ज़्यादा ठंडक चाहिए होगी तो यहाँ पे आ सकता है। शायद ठंडियों में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती होगी, पर अच्छी तरह से डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आगे भी काफ़ी होम स्टे, टेंट्स या होटल बन रखे हैं। यार ये हिमाचल प्रदेश जो है ना, अभी जहाँ पे हूँ मैं, ये तो लाहौल वैली है। ये पर छोटा है पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ये। अभी इसमें ये काफ़ी एरिया आते हैं, जैसे स्पीति वैली एक हो गया, ये लाहौल एक वैली हो गया, फिर ये मंडी का एक एरिया हो गया, ये मनाली का एक एरिया हो गया, फिर वो शिमला का एक एरिया, फिर और किन्नौर एक जगह है जो तिब्बत रोड के लिए जो फेमस है, किन्नौर। तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं, पर इतनी डाइवर्सिटी इसमें। अभी मैं जिस ज़िले में रहता हूँ, अहमदनगर नाम है उसका, अभी फ़िलहाल तो उसका नाम चेंज हो गया, अहिल्यानगर हो गया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ज़िला है वो। मुझे लगता है वो 3-4 ऐसे ज़िले मिला दिए इतने, तो ये इसका पूरा साइज़ हो जाएगा। पर इतनी डाइवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश में, आप सोच नहीं सकते हो। कहीं पे बर्फ़ होती है, कहीं पे नदी चलती है, कहीं पे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जैसे स्पीति, और ठंडा सा रेगिस्तान। तो और ये जो पेड़ों की जो ये है, क्या कहते हैं, पेड़ों की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया एरिया है, मुझे बहुत पसंद है। हिमाचल प्रदेश है ना, मैं बहुत लेट आया, मैं शायद 2-3 साल पहले ही हिमाचल प्रदेश में आया हूँ, बाकी उसके पहले कभी आया नहीं। मैं उत्तराखंड गया था, मैं ऋषिकेश, हरिद्वार एक बार कभी जहाँ पे जॉब करता हूँ उन लोगों के साथ, उन कलीग लोगों के साथ। पर ये बहुत लेट है मैं, पर मुझे बहुत पसंद है हिमाचल प्रदेश। हालांकि मेरे पैर पे शूटिंग स्टोन ने पहली बार जब आया था उसने फटका दिया था, पर फिर भी मुझे पसंद है हिमाचल प्रदेश। आया हूँ और अकेला ही हूँ, कोई फ़ोटो खींचने के लिए भी बंदा नहीं है। पर अगर खुद को अगर शूट करना है तो इस तरह से तुम शूट कर सकते हो खुद को, कि तुम गाड़ी चला रहे हो और ऐसी वादियों का नज़ारा ले रहे हो। ये देखो दूसरी बार, ऊपर देखो खतरनाक से पत्थर सिर पे लटक रहे। एक भी नीचे आ गया ना तो अपना टिकट कट जाएगा ऊपर का। ये केलोंग गांव है। तो पहले बस का हॉल्ट हुआ करता था यहाँ पे। HRTC जो है अपना
हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म का बस जो चलाती है वो सर्विस। तो यहाँ पे अगर किसी को लद्दाख आना है तो दिल्ली से यहाँ पे हॉल्ट लेना पड़ता था और दूसरे दिन यहाँ से दूसरे बस में जाना पड़ता था लेह के लिए। तो ये केलोंग था। आई एम ट्राइंग टू लूप दिस चेन with a regular oil. Now this doesn't have center stand, so I have to move the bike so that other part of chain will get exposed. But I have done almost of looping. Oh, so tiring. Just moved the bike from that part up to here. Is a task to again to get on it. I cannot put my feet across this and sit on the seat, so I have to literally climb on this, hold the bike steady and then try to move it in an upright position. Okay, so we've already looped the chain and now we'll be moving ahead. I have to put my gloves back on, so I'll stop somewhere and then I'll put my gloves. By the time it's going ahead free of cost, I'll allow the bike to go and roll. I've not started it yet. The road to go to bus stand, but now in case somebody wants to go Ladakh from Delhi, non-stop bus is there. Earlier people used to take halt here in Kelong. I mean the HRTC bus used to take a halt and the next bus used to be employed in order to send the people to or transport the people to Ladakh. However, now this is not the case. Straight away from Delhi one can take a bus and come to Leh. I think 1700 was the price of the ticket back then. Now it must be increased a bit, but now one can, I mean the services has not been resumed yet, but they'll very soon they'll be resumed and one can travel from Delhi to Leh or Leh to Delhi using HRTC bus and with a nominal fare. Beautiful mountains of Lahaul Valley. We'll be reaching Sisu in maybe 10 or 12-15 kilometers, but is remaining for Sisu, and then afterwards Atal Tunnel will come. Once we cross that Atal Tunnel, Lahaul Valley is over. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल है। सिसु वाटरफॉल एक अकेला ऐसा डिस्टिंक्ट दिख के आता है, ऐसा हार्ट का शेप बना हुआ है, शायद वही है, वो हार्ट का शेप है वहाँ पर। पीछे से अच्छा क्लियर कट दिख गया होता यार। वो सामने की तरफ वो जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, घर जैसा छत जैसा, वो अटल टनल है और वो उसका नॉर्थ पोर्टल है। तो अभी उसके पहले जाने के पहले मैंने ये जो ठंड के लिए पहनी थी रेनकोट, तो वो अभी उतरवा दी। अभी ये यहाँ पे रख दूंगा और फिर क्रॉस करते अटल टनल। ठंड तो कुछ बची ही नहीं, 12:30 हो गए अभी दोपहर के। ऐसा जो बना दिख रहा है बहुत दूर था, इसलिए झोपड़ी जैसा लग रहा है। ये बहुत बड़ा है, ये अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है। तो ये एंट्री देता है हमको उस तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, अभी क्या करेंगे ये पता नहीं। नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। माई बैटरी डाइड ऑफ GoPro, so I had to replace it. So I stood besides and I got the battery changed. Now I'll be moving ahead. This is a route that goes to Spiti Valley. So in case if anybody wants to go to Spiti Valley, that person can come from Manali this way and go there. It goes to Kaza, and we came from that route that goes to Lahaul Valley and then afterwards people can go to Ladakh. And we are at the north portal of Atal Tunnel.
Thank God, nobody has stopped us. I was worried that my bag will be opened up and they'll say that your bag needs to be checked. So we have entered Atal Tunnel. It is a tunnel of 10 kilometers. So I'll start the video when I'm about to exit. So you'll see quite a lot of lightings here. It's one of the most what do we say, sophisticated tunnel. Can you see this number 60? So there is a speed limit that we cannot cross, 60 km per hour in this tunnel. Now these people, they overtook me. I gave them some space to go ahead, but there is a vehicle which is going ahead. So that vehicle is maintaining the speed of 60, and because of that these people have to maintain the speed of 60. So the thing is, only one person is required to follow the rules, and if he is leading, everybody will have to follow him. So we are at the south portal of Atal Tunnel and we are heading out. So we could travel through Atal Tunnel very easily. They didn't stop us, and they didn't said that your bags need to be checked. I'll just turn this and I'll try to capture the... Oh, it's not... the label has been put up on here on the other side. Quite a lot of people take pictures, photos here. I'll ask somebody to take my picture. Public just to capture a picture in front of the gate of Atal Tunnel. Okay, we've already taken our picture. Now we are moving towards Manali, and my plan today is to go to Agra. I don't know, it is very tough. To Delhi I can reach, but to Agra it is something challenging, but I'm planning to go. Reason is I don't want to stay. Staying is not an issue, but when I have to stay, I have to remove all the riding gears. I have to dismantle bags and all. It is so energy consuming. I don't want to do that. So maybe in between I can put a tent somewhere on a petrol pump in between, maybe before Delhi or maybe after Delhi, and next day I can go for Agra. Let's check what is feasible. So we've just traveled our journey through Atal Tunnel. So this is the Solang Valley. Quite a lot of people are playing here. In winter they have snow in this. It's a small ground what people use, or what about kids enjoy playing in it. Right now there is no snow, but still it has become a tourist attraction. So we are in Solang Valley, some 20-30 kilometers before Manali. Solang village, this is it. नदी, और ये बगल से जो आ रहा है, ये शायद इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से आ रहा होगा. बहुत तेज़ आ रहा था वो जो आउटफ्लो था, और ये सब मिलके अभी ये नदी का फॉर्म ले लिया है. अबे कहाँ जाना है? ये सामने ब्यास नदी है. अभी तो बहुत छोटी लग रही है, शांत सी लग रही है, पर ये जून जुलाई के महीने में जो इसका अवतार होता है ना, मतलब लोगों के समझ के परे ये सब रास्ता बह गया है. उसकी वजह से ऐसा भयंकर सा 2024 में ऐसा तेज इसने अपना फ्लो बनाया था. सब कुछ जो भी उसके रास्ते में आया, सब कुछ बहा ले गया था. ये इतनी छोटी दिख रही है, ये पूरा बहा ले लिया था इसने. पीछे भी कुछ था, आगे तो बहुत ये सारा नया बना है. ये अभी आगे देखते हैं. ये बहुत बढ़िया रोड था ये, पर जो नदी ने इसके साथ किया है ना, मतलब सोच नहीं सकते आप.
So after this, even to go to highway, it's like if I go straight, it will be a problem. I'll have to take a right turn. It goes into a village called as Nagar. So Nagar, alone, as foreigner, she is roaming, and here we Indians are scared even to leave our hometown. So I will have to take a right turn. If I go straight, I'll go to a very I'll go through a very small narrow laned road which I took last time, and the highway is on this side. All the tourist visiting places are also on this side. We'll be taking this route. It's a highway that goes to Chandigarh, then to Delhi. My target is to go to Agra, and Agra is too far. Delhi itself is 500 kilometers from here. Chandigarh is 300 kilometers. Chandigarh is doable, but I'm planning for Agra. The reason is, if I travel in night, I can overcome the effect of traffic which I'll face in Delhi, and at the same time I can overcome the effect of heat. It's too hot here in southern part of India. Delhi is not a southern part, but it's very hot here as compared to Manali to Chandigarh. From Manali city, at least, only follow the route of river Bias. So this Bias river goes in that direction itself, where Chandigarh is there. At least till few tens kilometer, maybe 10 kilometer, 20 kilometer or something like that. Okay, so Kulu is straight, Bilaspur is straight, Chandigarh is straight, and we'll get a very good road after this. Situation is getting worse. I've got fuel of just 200 rupees. For car they are allowing for 500 rupees. For two-wheeler they are allowing for 200 rupees. And if it is a bus, they are allowing for 2000 rupees. So in 200 rupees, I don't know how much far I can go. Sorry, 200 rupees. It's not even 1 liter of fuel, 2 liter of fuel. Now everywhere I'll have to open this tank bag and I'll have to fill the fuel. Situation before the fuel stops completely or the supply stops completely, it is better I reach my home. So I'll try that I reach to Agra tonight itself. Let anything happen, I think I should reach. The reason is, there is no guarantee. रिवर राफ्टिंग बियास नदी में भाई साहब, पीछे 200 रुपए का फ्यूल मिल रहा था मनाली सिटी में. मेरी हालत ख़राब हो गई थी. कहा 200 रुपए का फ्यूल ही सभी बाइक वालों को मिलेगा, कार वालों को 500 का बस है तो 2000 रुपए का. भाई बाहर आया, अभी ये बाहर में तो फुल हो गया टंकी, पर अभी पता नहीं ये आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो मैं अभी, ये मेरा मनाली का प्लान था मेरा, पर मैं अभी यहाँ पे रुकने वाला हूँ नहीं. मुझे पहले भी अंदाज़ आ रहा था, क्योंकि न्योमा में जो है, दिल्ली इज़ एग्जैक्टली 500 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. आई हैव जस्ट क्रॉस्ड a big city of Manali, and I'm heading towards Kulu. I need to reach to Agra tonight itself. Reason is, there is a fuel shortage, and in Manali city they were just giving me a fuel of 200 rupees. If it is a bike, they'll give you just 200 rupees. And amidst this fuel shortage, I don't want to extend this tour. Reason is, there is no guarantee that we'll be getting fuel consistently. There was a very remote place called as Nyoma in Ladakh. People went far away from there thinking that they'll get petrol
however, the petrol was not available. The fuel pump itself was shut, and they were extremely painful situation, chaotic situation, and most of them had got panicked. We purchased from the local shop, so for 150 rupees per liter, so around 10 liters or 11 liters I purchased, and because of that my vehicle could come here easily. I filled my fuel. Now I could get on highway at one place 840 rupees fuel. My tank is full. Now I'm planning that I'll reach to the farthest place where I can reach, that is Agra, and maybe I'll stay one day, and then afterwards I'll plan back to my home. I cannot extend this because I'm scared what will happen with the fuel. लेफ्ट में जो टर्न जा रहा है ना, ये मणिकरण के लिए है. आपको हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में मैंने पहले बोला था, पुगा के. तो यहाँ पे मणिकरण एक मंदिर है, और वहाँ पे उसके अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग है. तो काफ़ी यूनिक सी चीज़ है, जो मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा है या कहीं पे देखा है. लोग उसमें कुछ उबाल भी सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो डाल दिया कोई बैग में, तो उबल के बाहर निकल जाएगा. तो पास में ही है, पर मैं भाग रहा हूँ वापस अपने घर की तरफ. पता नहीं पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर है अपने घर चले जाओ. 2-3 दिन में पहुँच जाओगे, तो फिर बाद में इलेक्ट्रिक गाड़ी घुमाते रहो जितना घुमाना है सिटी में. यार ये मंडी के पहले है ना, ये यहाँ वाला पैच बस सिंगल लेन हाईवे है. तो एक तरफ से अगर बड़ी गाड़ी आ गई तो दूसरी तरफ जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. अभी मेरे पीछे जाम लग रखा है, मैं साइड से निकल आया, पर ये बहुत रिस्की है. ये शायद इसको कुछ सोल्यूशन कर रहे हो गए ये. अभी तो ये बड़ा दिख रहा है, पर पीछे बहुत छोटा था रास्ता. ये देखो, ऐसे जैसे ये आ रहे हैं ना, ये बहुत तेज़ इस तरफ दूसरी लाइन में भी आ जाते हैं. और अभी कोई मैं अकेला ही हूँ इस डायरेक्शन में, तो उनको लग रहा होगा ये पूरा टोटल सिंगल लेन हाईवे है, मतलब वन साइडेड हाईवे, कि यही से आने वाले बस यही से आएंगे, जाने वाले कहीं और से जाएंगे. तो ऐसा है नहीं. नीचे है डैम, अच्छा खासा बड़ा डैम है, और शायद उसके बगल से या उसके ऊपर से ही जाएंगे हम. Well, I have no clue what happens to this GoPro, but whenever there is a good scene or something important is about to happen, this GoPro hangs, and we are not able to start it. Same thing is with my bike's horn. Right now it is working, but at important place it stops working. So it's quite a big dam, and it's quite close to the city. So we'll be heading to Mandi now. Okay, we are on the dam. They've tried to decorate this road as well. This is basically the stoppage of, or the main wall which stops the water from flowing, and they've tried to decorate with putting lights on it, street lights. So in some time we'll reach to Mandi. यार वो डैम के बाद है ना, ये पांडोह नाम का एक विलेज लगा, और उसके बाद फिर ये ऐसा डबल लेन हाईवे है. तो अभी अगर ये सही है, मैं पिछली बार जो मेरे ध्यान में आ रहा है, तो ये बहुत आगे तक है, शायद चंडीगढ़ तक ऐसा ही मिलेगा, कीरतपुर तक तो है ही है. तो ये अच्छा हाईवे शायद शुरू हो गया हमको. आगे मंडी है, पर अब मंडी की भीड़ न लग जाए. अभी 4:30 पौने 5 हो गए, तो थोड़ा लेट ही हुआ है. 4 के आसपास होता था तो भीड़ कम होती थी. चलो देखते हैं अभी आगे. ऑन द राइट साइड वॉज अ टर्न टू मंडी, and this tunnel number 7, I think it has let us bypass Mandi. Last time we came through this route,
We had a lot of traffic jam issues. We had to face it back in 2023. But I think this might be bypassed by this. Price in Himachal Pradesh is 98 rupees. Even after increase in fuel prices, earlier it was 94. Now it has become 98. Whereas Ahmednagar it will be 110, I guess. Sorry, not Ahmednagar, Maharashtra. ये देखो ऊपर मेरा स्पीड रिकॉर्ड हुआ और मुझे भी दिखाया उसने. तो ये इतना बढ़िया हाईवे, जाहिर सी बातें लोग भगाएंगे इस पर. तो एक कम से कम एक आइडिया आ जाता है कि भाई तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है या कम है. ये शायद ये चलान के लिए यूज़ नहीं करते, बस ये बस इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये देख लो भाई तुम्हारा इतना स्पीड है, तेज़ जाना है तो जाओ, स्लो करना है तो कर लो. पर ये है, ये बढ़िया है. ये अभी हिमाचल की बॉर्डर शायद क्रॉस कर ली मैंने या करना है, और ये अभी पंजाब में एंटर करने वाला हूँ या कर लिया. चंडीगढ़ यहाँ से 120 किलोमीटर है भाई. ये बिलासपुर है, और अगर आप यहाँ से राइट टर्न लेते हो तो आप जाओगे चंडीगढ़ में, और अगर सीधे चले जाते हो तो आप जाओगे शिमला में. तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो मैंने कर लिया ये राइट टर्न यहाँ से. चंडीगढ़ कुछ 100 किलोमीटर बचा है यहाँ पे, पर मेरा ऑब्जेक्टिव है, अभी 6:10 हुए, पर मुझे आगे जाना है. मैं सोच रहा हूँ दिल्ली पार कर लूँ आज के आज, ताकि भीड़ भी ना लगे मुझे दिल्ली की. और दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, जब मैं फ़ोन रखता हूँ नेविगेशन करने के लिए, और भीड़ तो लगती है और टाइम बहुत लग जाता है अंदर दिल्ली में, और ऊपर से जब सूरज उस पर चमकता है तो फ़ोन खुद उसका ब्राइटनेस बढ़ा लेता है, और इधर हवा लगती नहीं तो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है वो. और यहाँ पे लगाता हूँ तो हेवी है मेरा सबसे ज़्यादा iPhone 13 Pro Max, तो पूरा नीचे आ जाता है, और तेज़ तो चला ही नहीं सकता हूँ अगर यहाँ पे लगा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाती है. तो मैं सोच रहा हूँ आज रात के रात मैं दिल्ली को भी क्रॉस कर लूँ, और अगर हो सके तो आगरा चले जाऊँ. देख टनल नंबर 3 आ गई है, और शायद और सिर्फ 2 टनल बाकी है, और फिर ये ख़त्म. फिर ये टनल का जो खेल है ये सब ख़त्म, जो है वो सीधा सीधा रास्ता मिल जाएगा. मेहनत मेरी, रहमत तेरी. टनल नंबर 2. Okay, so this is tunnel number 1. So tunnel number 1 welcomes you. Looks so nice. And there are 2 sections of it. So one to go on this side. There are 2 lanes to go on this side, and on the other side there is another duct. So people who are coming from there can come, and they also have 2 lanes for it. So it's quite beautiful, and quite sophisticated technique has been used, the way it is put up with your Atal tunnel. शायद बॉर्डर थी, और अभी मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में हूँ. यहाँ पे टोल वोल भी है, टोल है या चेक पॉइंट है पता नहीं. चेक पॉइंट था, टोल ऐसा कैसे का होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में पहुँच गया हूँ मैं. अभी कितने बजे है? 6:30, एग्जैक्टली 6:30 बज गए. और 80 किलोमीटर यहाँ से चंडीगढ़. 7:30 बजे तक तो उजाला होता है, और फिर 7:30 के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा. कीरतपुर से ये पंजाब का बड़ा सा रोड है ये, शायद ये पीछे जो अमृतसर को जाता है या कश्मीर को जो जाता है, ये पठानकोट को जाता है, ये वो रास्ता है. तो आगे चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ से आगे दिल्ली है. तो अच्छा रोड मिल गया, ये कोई दिक्कत नहीं. दिल्ली इज़ 296 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. I had mentioned that Delhi was 500 kilometers some time ago. I must have also mentioned the time in it. I'll go and check at what time now. Right now it is 7
7 o'clock, 7 past 5. So how much time? It maybe 2 hours it must have taken, or 2.5 hours it must have taken for me to cover 200 kilometers in a mountainous situation. Now this is a straight road. Only thing is there is a traffic, but still I'll be able to cover it. Not 3 hours, but maybe 4 hours, 5 hours, but I'll cover Delhi today itself. I've got confidence now. हाईवे लग गया, लेफ्ट साइड में चंडीगढ़ है और ये सीधा जा रहा है अंबाला के लिए। अभी ये इतना बढ़िया रोड है, अभी मैंने तो ले लिया। मुझे डर है ये 4 व्हीलर का तो नहीं है, डेडिकेटेड 4 व्हीलर के लिए आगे फंस ना जाऊँ मैं। एक 2 व्हीलर तो दिख रही है मुझे, पर अभी देखते हैं अभी क्या है। पर सीधे अंबाला अगर निकल जाता हूँ तो ये क्या बढ़िया हो जाएगा यार। ये देखो ये बीच में डाल रहा है। यार हरियाणा में वो भी 100 किलोमीटर और आगे जाना है दिल्ली के लिए, और फिर दिल्ली से आगे और आगरा जाने की कोशिश करूँगा। अगर थक नहीं गया तो फिर पहुँच जाऊँगा। दिल्ली में रुक गया तो फिर कल की भीड़ लग जाएगी रास्ते में। जो दिल्ली की जो एक्चुअल ट्रैफिक होती है वो गर्मी अलग से। तो अभी थाली मंगाई है, अभी थाली खाऊंगा। अभी रात का टाइम हुआ है 11 बज गए। ठीक है, खाना का तो और आगे निकलता हूँ।
ये CSIR की लैब है और इन्होंने रात को काम इसके सामने शुरू किया, रात के 2 बजे, और ये बुरी तरह से पीछे ट्रैफिक जाम हो रही है। On the way to Agra. Hopefully at 6 o'clock in the morning I'll reach there.